اللہ کے محبوب بندوں نے ایسے ایسے قربانیوں کو پیش فرمایا ہے کہ ہر قربانی کو اگر تاریخ پر رقم کرتے چلے جائیں اور اس کو صفحات زندگی پر بکھیرتے چلے جائیں تو ایک طویل زندگی اس کے بیان کو کافی نہیں ہوگی۔ اس قدر ان کی زندگیوں کو انہوں نے دین مدین کے حفاظت کے لیے آزمائش و قربانیوں سے گزارا اور ہم تک کہ وہ کامیاب طریقے سے سلامتی کے طریقے سے اس دین کی سچی تعمیر کو پہنچایا۔ یہ مہینہ جو بقرعید کا نام ہم جانتے ہیں، جسے ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ایک عظیم عبادت بھی پوری کرتا ہے، پیش کرتا ہے، قربانیاں بھی ادا کرتا ہے۔ اور یہ قربانیوں کی مثال اور عبادتوں کی مثال اللہ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ قربانی اور ایثار کے خلوص کے اعمال کی ادائیگی اور ان کے یاد کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں جب بندہ اپنے طور پر عبادتوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے، برکتوں سے مالا مال ہوتا ہی ہے۔ قربانی کا صحیح مطلب و مقصد سے جب بندہ اس مہینے میں آشنا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے سے جب بندہ جان لیتا ہے، اسلام کے لیے قربانی، دین کے لیے قربانی دی جاتی ہے، کبھی جان کی تو کبھی مال کی قربانی دی جاتی ہے، تو اسی اثنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ آتا ہے۔ یعنی یہ مہینے جو ہمارے جڑے ہوئے ہیں، اسلام کے جو 12 مہینے جانے جاتے ہیں، ان میں کا آخری مہینہ اور شروع کا مہینہ یہ اسلام کے عظیم ہستیوں کی قربانیوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ ان مہینوں سے بندہ صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا درس عبرت حاصل کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جانے کا شوق اور ذوق پیدا کر دیتا ہے۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پر ابو لولو فیروز نام کا جو شخص تھا، اس نے حملہ کیا تھا۔ 26 کو آپ زخمی ہوئے تھے اور بعض روایتوں کے مطابق آپ محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کی تدفین ہوئی اور اسی تاریخ آپ نے وصال فرمایا۔ بعض میں ہے کہ آپ نے 3 دن بعد وصال فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینے کے آخری بھی اور اسلام کے سال کا آخری بھی اور آخری مہینے کا آخری حصہ بھی اور شروع مہینے کا شروع حصہ بھی اسلام کے عظیم ہستیوں کی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی سچائی اور اسلام کی عصمت کے لیے انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اس زندگی کے سلیقے کو حاصل کرنے کا ہمیں سلیقہ ہمیشہ نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ان کی صفت کو بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر بہت سخت ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مومن جو بندے ہیں ان پر بڑی مہربانی کرنے والے ہیں۔ جب ہجرت کا وقت آیا تھا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی تھی اور ہجرت کرنے والے جتنے بھی تھے مکہ سے مدینے کی طرف آنے والے، وہ چھپ چھپ کر کے پوشیدہ طریقے سے وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی تو آپ کی آمد کیسے ہوتی ہے؟ آپ مکہ میں جاتے ہیں اور آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ترکش، کمان، تلوار، بھالا، جو جنگی ساز و سامان ہے سب آپ لے کر کے وہاں چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، مذاق کے اندر تشریف لے جاتے، فرماتے ہیں سنو ہر کوئی آگاہ ہو جائے، کل کو یہ نہ کہنا کہ عمر خاموشی کے ساتھ مکے کو چھوڑ کے مدینے کی طرف چلا گیا ہے۔ عمر بن خطاب تم سب کے سامنے اعلان کر کے مکہ کو چھوڑ کے مدینے کی طرف اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
जाने वाला है। और तुम में से जिस किसी की औरत बेवा करना चाहता है कोई शख्स, या कोई माँ अपने बच्चे को रोना चाहती है, तो उसके अंदर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर ले, मैं मक्का के बाहर इंतजार करने वाला हूँ। अगर है हिम्मत तो आकर मुकाबला कर ले, मुझे रोक ले या मुझे मार दे या वो अपना अंजाम को पहुंच जाए। हाँ, याद रख ले कि उमर डर करके छुप करके जाने वाला नहीं है। और अल्लाह तआला ने वो शान अता फरमाई, जब आपने ऐलान फरमाया तो किसी में हिम्मत ही नहीं कि वो आपके सामने में आ जाए। और कैसे है कि आपकी शान और सिफत को जब बयान किया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो बयान है, एक मर्तबा हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ फरमा है, उम्मुल मोमिनीन है रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके गोद में अपने सर मुबारक को रखे हुए हैं और आप आसमान पर सितारों को देख रही हैं और अर्ज करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो उमर की नेकियां। और आज देखते हैं कि आसमान की कितनी गैलेक्सीज हैं और उसके कितने सितारे हैं, उसके कितने सैयारे हैं, उसके कितने कितने मामलात हैं। इंसान हैरान हो जा रहा है। साइंस तरक्की करते करते थकती हुई सिसकती दम तोड़ती नजर आ रही है, मगर अल्लाह के कुदरत के जलवों का अंदाजा लगाना उसके बस की बात नहीं है। और उन सितारों की गिनती पूरी कर लेना, ये इंसान की सोच और साइंस की कितनी ही तरक्की इंतहा को पहुंच जाए, हो ही नहीं सकती है। इसलिए कि वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनी मखलूकात अल्लाह ने पैदा फरमाया। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, ला युज़हिरु अला गैबि अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, अल्लाह ताला अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता मगर अपने पसंदीदा रसूल पर जाहिर करता है। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी पर जाहिर फरमाया, तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के सितारों के बराबर नेकियां उमर की नेकियां हैं। पता चलता है कि नबी को सितारे कितने हैं ये भी पता है, सितारों के आगे जहां कितने हैं ये भी रसूलुल्लाह है। जब रसूलुल्लाह की बात करते हैं तो हैरानी की क्या बात है, आप तो सय्यदुल अंबिया हैं। जब हम आपके शहजादे की तरफ हजरत मीरे मीरा मुहय्यिद्दीन जिलानी की तरफ देखते हैं, फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कहर गलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के बनाए हर शहर को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना। हजरत पीराने पीर की नजर की वुसअत का ये आलम है, तो फिर सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन की नजर के ऊपर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उमर की नेकियां हैं। और ऐसे ही फरमाते हैं कि शैतान उस गली से गुजरता नहीं जिस गली से उमर गुजर जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस राह से गुजर जाएं उस राह को छोड़ करके शैतान भाग जाया करता है। कि उनकी शिद्दत, कि उनकी शान जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, मगर इन सब के बावजूद वो रहमदिली भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। रुहमा बैनहुम का जो वस्फ अल्लाह ताला ने अता फरमाया, आपस में बहुत ज्यादा रहमदिली करने वाले हैं। एक मरतबा का वाकया है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके एक साथी, आपके एक खादिम हजरत अफलाह उनका नाम था, उनको साथ में लेकर के आप शहर के गश्त करने के लिए निकलते हैं। आप रात में अपनी रियाया के हाल व अहवाल जाना करते थे। एक आम सा सिपाही बन करके आप कभी शहर के दरवाजे पर पहरा भी दिया करते थे और शहर में घूम करके लोगों के हाल अखबार को भी जाना करते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि आप कुछ दिन में राहत कर ले, रात में आराम कर ले, दिन में कुछ आराम कर ले। वो कहते अगर मैं दिन में आराम करूंगा तो ये खिलाफत के उमूर को कैसे अंजाम दिए जाएंगे, और अगर मैं रात में आराम करूंगा तो रब को क्या मुंह लेकर के मैं जाऊंगा, रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। यानी रात मेरी इबादत के लिए होती है, दिन मेरी रियाया की खिदमत के लिए हुआ है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में निकल करके जान रहे थे कि किसी मेहमान तो मामला तो नहीं, एक अचानक एक घर से गुजर होता है, गली से गुजर होता है, तो देखते हैं कि घर में कुछ रोशनी नजर आ रही है और घर के अंदर से बच्चों की और बच्चों की माँ की कुछ धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने साथी से फरमाया, उस वक्त पर आप अपने चेहरे पर निकाब लगाए हुए थे ताकि कोई पहचान ना पाए, कोई फौरन जान करके अपने आप को छुपा ना पाए। छुप करके जानना चाहते थे कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है, किसी को कुछ न जाने में तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है, उसको जानने के लिए आप उसके हिफाजत के लिए जा रहे थे। इत्तेफाक से उठ करके करीब आप और करीब होते हैं, कहते हैं सुने कि क्या
معاملہ ہے؟ گھر میں کچھ روشنی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ گھر والے بھی جاگ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ قریب ہو کر کے دروازے کے قریب چلے جاتے ہیں۔ آج کے جیسے بڑی بڑی بلند عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھی، مٹی کی دیواریں ہوا کرتی تھی، مٹی کے چھت ہوا کرتے تھے، لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے دروازے ہوا کرتے تھے، یا گھر کی دہلیز پر پردہ ہوا کرتا تھا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، پردہ ہونے کے باوجود چوری کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، صرف پردہ ہونے کے باوجود پردہ ہٹا کے گھر میں جھانکنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا بھی ناجائز ہے، اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ وہ نگاہیں نیچی رکھ کر کے گزرنے والا منظر و ماحول ہوا کرتا تھا۔ وہ گھروں کے دروازوں کو کھلا رکھ کر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دینے والا زمانہ بھی نہیں تھا، ہر گھر کے دروازے کو تک تک کر کے جھانکنے والا بھی زمانہ نہیں تھا۔ وہ خیر کا زمانہ تھا اور رحمت والا زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار سے قریب ہو کر کے سننا چاہا۔ ایک بچہ ہے، ماں سے کہتا ہے امی جان آخر کتنا وقت لگے گا؟ رات گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہمارا کھانا پکا نظر نہیں آ رہا ہے، بھوک سے حال بے حال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے امی دیکھ تیرا بیٹا کیسا بھوک سے بلک رہا ہے، کتنا بھوکا اور پیاسا ہے، برداشت نہیں ہوتی، امی کچھ کھلا دے، آخر یہ کب کھانا ہمارا پکنے والا ہے؟ ایک بچہ کہتا امی رات تو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، کتنا وقت لگے گا آخر کہ کچھ کھانے کو ملے گا؟ 2 دن گزر گئے، ابھی ہمارے پاس ایک دانہ پیٹ میں کھانے کا نہیں گزرا ہے۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی، آخر ماں کرے گی تو کیا کرے گی، ایک خاتون کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ کہتی ہے بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہو جائے گا۔ میں نے چولہے پر تو ہانڈی چڑھا دی ہے، نیچے آنچ بھی لگا دی ہے، اور اس کو بھرنے کا کام اور اس کا ذمہ وہ ہے جسے جسے ہم خدا کہتے ہیں، جسے اللہ نے خود اپنی زبان سے رزاق رزق دینے والا ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ ماں بچوں کو تسلیاں دے رہی ہے، بچے چھوٹے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، مگر ان کے گھر میں کوئی بچوں کی بھوک مٹانے کا سامان نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں کہ گھر کو کچھ لا کر کے دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دیتے ہیں اور گھر میں ان کی اجازت لے کر کے چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیوی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تم بچوں کی گفتگو سن لی ہے، معاملہ کیا ہے بتاؤ، تمہاری تکلیف کیا ہے بتاؤ۔ خاتون کہتی ہیں آپ اپنا کام کیجئے، ہم پریشان حال مجبور ہیں، ہماری پریشانی سن کر کے آپ کا کیا فائدہ کیا نقصان، اور آپ کے سن لینے سے ہمیں سنا دینے سے ہمارا کیا فائدہ کیا نقصان، ہم جس حال میں ہیں صبح دیکھا جائے گا کہ صبح کیا ہونے والا ہے، ہمارا رب ہمارا نگہبان ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بار بار اصرار کیا گیا تو ان خاتون نے کہا سنو میری ایک ہی شکایت ہے، جب دل درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے، نگاہوں کے سامنے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی چیز ان کی بھوک مٹانے کی نہیں ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری نبھانے والا گھر میں نہیں ہوتا ہے، تو مجبور عورت دل تڑپتے ہوئے اس کی زبان سے کیا کہتی ہے؟ جس کو وہ اپنا سمجھتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی حمایت اور نصرت کی امید لگاتی ہے، جس کی طرف اپنے آس کی نگاہوں کو بڑھائی رہتی ہے، جس کے ایک اشارے پر اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، اسی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اس نے بھی کہا سنو میں امیر المومنین عمر فاروق سے شکایت رکھتی ہوں، وہ ہمارے امیر ہو کر کے بھی یہ حال گزر گیا کہ 2 دن گزر چکے، اس سے زیادہ ہو چکے، میں اور میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، انہیں ہماری خبر لینی چاہیے تھی، انہیں ہمارا خیال کرنا چاہیے تھا۔ تڑپ کر کے جواب دیتے ہیں حضرت عمر فاروق عمر کو تمہاری تکلیف کا کیا پتا کہ وہ تمہارا خیال کرے اور تمہارا لحاظ کرے، عمر کو کیا پتا۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسے کیسے پھر وہ امیر کیسے بن گئے؟ جب وہ رعایا کا خیال نہیں کر سکتے تو پھر امیر کیوں بنے ہیں؟ وہ امیر بنے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور فوراً اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور آٹے کی پوری بڑی بوری کاندھے پر اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ آپ کے خادم آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے، کہتے حضور مجھے دے دیجئے میں اٹھا دوں گا، حضور مجھے دے دیجئے میں اٹھا دوں گا۔ اور اس خاتون نے ایک بات کہا تھا آج اگر میرا کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر آج میری کوئی بات کی فریاد کی میری فریاد کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے، میری فریاد رسی نہیں کی جاتی ہے، تو سن لیں کل میں رحمت للعالمین کی بارگاہ میں شکایت کروں گی کہ میرا یہ حال گزرا، میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے گزر رہی تھی، میرے یہ وقت گزر رہے تھے۔ وہ حضرت عمر فاروق تڑپ جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، آٹے کی بوری کاندھے پر اٹھا کر کے لے کر آتے ہیں۔ جب لے کر کے آتے ہیں تو ان کے خادم کہتے حضور مجھے دے دیں، میں آپ کے وہ بوری
उठा करके लेकर के चले जाता हूँ। कहते नहीं, क्या कयामत में भी तुम मेरा बोझ उठा सकते हो? क्या कब्र में तुम मेरी जगह जा सकते हो? नहीं, ये मेरा जिम्मा है, ये मेरा बोझ है, मुझे को उठाने दो, मुझे को पूरा करने दो। जब करीब लाते हैं, लाने के बाद घर में आवाज दे करके पहुंचते हैं और बोरी को घर में रख देते हैं, हांडी में आटा डाल देते हैं, चूल्हे के अंदर रोटी बनाते हैं और सेक सेक करके बच्चों को खिलाते हैं, जरूरत की चीजें उन्हें खिलाते चले जाते हैं। और रावी कहते हैं हाल ये है कि उनकी दाढ़ी धुएं से भर चुकी थी जब वो चूल्हे में फूंक फूंक करके आग लगा रहे थे। जब उनका यह हुस्न सुलूक देखा, वो खातून हैरान और शशतर है, आखिर ये कौन अल्लाह का बंदा है? इसको हमारी तकलीफ से क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों ये मेरे भूखे बच्चों का पेट भरना चाहता है? क्यों ये भूखी बेवा औरत का पेट भरना चाहता है? जब बच्चे खाना खा चुके तो बच्चों की दिल बहली के लिए बच्चों के साथ जो है वो खुश बातें करते हैं, अच्छी बातें करते, उन्हें हंसाते हैं और अपने खादिम से कहते हैं जिस आंखों से मैंने इन बच्चों को भूख से रोता तड़पता देखा था, आज उन्हीं आंखों से इन्हें हंसता को देखना चाहता हूँ। इतने के बाद बच्चे हंसते खाते पीते पेट भर करके बच्चे थके हारे थे, भूखे प्यासे थे, सो जाते हैं। वो खातून उनके एहसान पर, उनके सिला रहमी पर हैरान और शशतर रह करके अर्ज करती हैं, ऐ हमारे मोहसिन, जरा ये तो बताएं कि आप कौन हैं, आपका क्या मामला है, ये अचंभा नजर आता है, हमें समझ में ही नहीं आता है। वो हजरत उमर फारूक बयान फरमाते हैं, क्योंकि अभी आप निकाब ही की हालत में थे, चेहरे पर आपके कपड़ा लगा भी हुआ है, आपको पहचाना नहीं जा रहा है कि आप कौन हैं। आप फरमाते हैं कि सुनो, पहले इससे पहले ये बात मेरी कह दो कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस मेरे हुस्न सुलूक से अगर तुम खुश हो गई हो तो उमर की शिकायत रसूलुल्लाह के सामने न करना। वो खातून हैरान है, तुम्हें उमर से क्या रिश्ता, तुम्हें उनसे क्या वास्ता, तुम्हें उनसे क्या ताल्लुक? वो तो हमारे अमीर थे, वो हाकिम थे, मुझे कहा मैं उनसे शिकायत करना चाहती थी और उनके भी जो बड़े हाकिम हैं, जो हम सब के हाकिम हैं, रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में शिकायत करना चाहती थी, मगर तुम्हें उनसे क्या रिश्ता? वो कहती है सब माजरा बाद में, पहले अगर तुम मेरे इस तरीके से, मेरे इस सलीके से तुम्हारे बच्चों के साथ जो मैंने हुस्न शुरू किया उससे राजी हो। वो कहती बेशक मैं राजी हूँ, तुमने तो हमारे घर को अनाज से भर दिया है, अब फिक्र नहीं कि मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगी क्या पिलाऊंगी। हाँ, तुम्हारी खातिर मैं उमर से राजी हो गई और उनके उस भूल से, लफ्ज़ से मैं राजी हो गई, माफ कर दिया और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उनकी जगह अल्लाह तुम्हें खलीफा बनाए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अपने चेहरे से निकाब हटाते हैं तो खातून हैरान और शशतर रह जाती है। क्या देखती है कि खुद खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला हैं। और वो औरत हैरान हो जाती है, अर्ज़ करती है अमीरुल मोमिनीन माज़रत ख़्वाह हूं कि मैंने आपके मुंह पर आपके हक में कह दिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फरमाते नहीं बहन, तुमने जो कहा मुझे मेरा जिम्मा याद दिलाया था, ये मेरी कोताही थी कि मैंने तुम्हारे घरों की तरफ तवज्जो नहीं की, यानी तुम्हारे घर की तरफ तवज्जो नहीं की। खुदा जो गफलत जो भूल हुई उसको माफ कर दो, बाहर निकलते। हालांकि देखा जाए तो हाकिम का जालिम होना उस वक्त पर होगा जब उसके बाद उसके पास कोई बात पहुंच जाती है और उस पर इंसाफ नहीं देता है, उस तक कोई बात ही नहीं पहुंची है, उस तक कोई मामला ही नहीं पहुंचा है, तो फिर उनकी उस चीज से गफलत करना और ज़ुहूर हो जाना, उसका ख्याल न करना, ये सारे इल्जाम हकीकत में शरई एतबार से बेबुनियाद हो जाते हैं। मगर एक दर्दमंद के दिल को दुखाना हज़रत उमर फारूक को गवारा नहीं था। वो कह सकते थे, रसूलुल्लाह खूब जानते हैं कि शरीयत का तकाजा यही है कि उन तक के हाकिम तक के जो बात पहुंचे और उस पर इंसाफ न किया जाए तब अलग बात है। मुझ तक तुम्हारा मामला ही नहीं पहुंचा है तो मुझसे मुआखजा कैसे रसूलुल्लाह फरमाएंगे? हाँ, ये है कि तुम्हें क़यामत में जरूर बदला और उसकी नेमतें अता की जाएंगी, वो अलग बात है। ये जवाब दिया जा सकता था, मगर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिल की दर्दमंद जो खातून है, एक दुख भरी खातून है जिसके अंदर दुख फूट फूट करके भरा है, तकलीफ से जो परेशान है, उसकी मजीद दिल आज़ारी नहीं करना चाहते हैं, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, बल्कि मोहब्बत और हुस्न सुलूक का ऐसा तरीका उसके सामने पेश कर देते हैं गोया कि वो खुद अपने दिल से राजी हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान होती है कि कभी वो मुजरिम न हो करके भी सामने वालों की तसल्ली के लिए अपने आप को ऐसे जाहिर कर देते हैं कि वो खामोश हो खुश हो जाते हैं। कभी वो सच्चे होकर के भी, कभी वो सही होकर के भी सामने वालों के दिल को तोड़ना गवारा नहीं करते हैं, हंस करके उनकी ज्यादती को बर्दाश्त करके चले जाते हैं। हकीकत में देखा जाए तो अल्फाज की ज्यादती भी इसी खातून की तरफ से थी, मगर फिर भी आप क्योंकि जानते हैं कि वो तकलीफ में है, दर्द में है, परेशानी में है। परेशानी में जब इंसान होता है तो उसकी तकलीफ में जब होता है तो उसकी जबान कुछ और होती है, हाल कुछ और होता है। दर्द की जितनी देर होती है दर्द भरे अल्फाज होते हैं, दर्द भरे अल्फाज का एतबार नहीं किया जाता है। या आप
रहम दिली की आला तरीन मिसाल पेश फरमाते हैं। ऐसे ही एक मर्तबा का वाक़या है कि आप तशरीफ ले जा रहे थे कि झोपड़ी नजर आती है, आप उस झोपड़ी के पास जाते हैं, एक बुढ़िया बैठी थी, उस बुढ़िया के पास जाते हैं, जाने के बाद पूछते हैं बीवी बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे कैसे चल रहे हैं, तुम्हारे दिन कैसे चल रहे हैं, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। बुढ़िया कहती है तकलीफ तो बहुत है और बहुत तकलीफ पहुंच रही है, मुझे परेशानी में मेरी जिंदगी गुजर रही है। वो कहते हैं क्या मामला है, क्यों परेशानी हो रही है? वो कहते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ ही से मेरी तकलीफ और परेशानी है। वो अमीर व हाकिम होकर के मुझ गरीब बुढ़िया का भी ख्याल नहीं करते हैं। हर दर्दमंद की यही सदा होती है, वो जहाँ से उसकी दूरी बढ़ जाती है वहीं पर उसकी निगाहें हुआ करती हैं। ये बुढ़िया का भी मामला कहाँ से हल होना था? वो खिलाफत के मामले हजरत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह से ही उसको जो भी मामला पहुंचना था वो पहुंचना था। निगाहें तो उसी दर रहमत से बिकी हुई थी। वो बांधने वाला जिसको अल्लाह ताला ने बनाया था, मोमिनों के हुकूक को पूरा करने वाला जिसे अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया था, वो अमीरुल मोमिनीन के दरवाजों पर निगाह न लगाए तो फिर कहाँ निगाह लगाए? किसी और की जगह पर कैसे वो निगाह लगा सकती है? उसका तो वही उसी दरवाजे पर निगाह लगी हुई थी, जमी हुई थी और दामन भी वहीं फैला हुआ है। मगर फिर भी वो कहते हैं, उमर है बड़ी शान वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई उनका जिम्मा था कि वो मेरा ख्याल करें, वो मेरे परेशानी को दूर करें। हज़रत उमर फारूक फिर यही जवाब देते हैं सुभान अल्लाह, तुम्हारे हाल की उमर को क्या खबर, तुम्हें क्या तकलीफ है उनको पता हो तब ना तुम्हारा मामला हल होगा। आपने बताया ही नहीं, उनको कुछ खबर ही नहीं कि फिर ऐसे नाराज भी उनसे हैं और उनकी शिकायत भी करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह क्या मामला है? वो बुढ़िया कहती है सुभान अल्लाह ऐसे कैसे हो सकता है, वो हमारे अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारा ख्याल करें। हज़रत उमर फारूक उसे मसला नहीं समझाते हैं, जान जाते हैं कि और खातून तकलीफ में है। बुढ़िया से कहती बीवी एक बात मैं कहता हूँ, आप ये कह दें कि उमर आपके नजर में ये गलती हो चुकी है, उससे ये लफ्ज़ हो चुकी है, तो आप उसकी गलती को माफ करने के लिए मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। आप उमर की गलती माफ कर दो, मैं आपको उसके बदले में आप जितने पैसे चाहो वो पैसे दे दो और कल क़यामत में उमर की शिकायत अल्लाह के सामने ना करो। हज़रत उमर फारूक का ये कहना, वो बुढ़िया कहती है कि तुम्हें क्या ताल्लुक है, तुम्हारा क्या इलाका है? वो कहते हैं इलाका सब छोड़िए, पहचान नहीं पाई इलाका सब छोड़िए, आप उसकी गलती को माफ करने के लिए कितना आप मान लेना चाहते हैं? तो बुढ़िया कहते मुझे 25 दिनार चाहिए, चांदी के 25 सिक्के चाहिए। वो भी इस वाली लालच वाली नहीं कि उसकी जरूरत पूरी होना था। वो नहीं चाहती है कि मुझे सल्तनत चाहिए, सोने का खजाना चाहिए, उसकी भी इतनी सादगी इतनी है कि मैं अपनी जरूरत जितनी उसकी जिंदगी की जरूरत जिससे हो जाए उसी को बचा रही है। मुझे 25 दे दो, 25 दिनार दे दो, यानी उस जमाने के 25 रुपए मुझे 25 रुपए दे दो, मैं माफ कर दूंगी। इतने में हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। दोनों हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम करते हैं और जाहिर सी बात है अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप पर अल्लाह की सलामती का नज़ूल हो। जब बुढ़िया ने अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और सलाम करने वालों के अंदाज को देखा, मोहब्बत और अदब को, शौक को देखा तो वो डर जाती है। वो अफसोस करने लगती है, अफसोस बुरा हो मेरा, मैं कुछ देर सब्र न कर सके और मैंने अपनी जबान से तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह दिया, अफसोस अफसोस करने लगी। हज़रत उमर फारूक फरमाते बीबी इस पर अफसोस की बात नहीं है, आप अपनी जेब से उसकी तयशुदा तलब की जो जितनी कीमत उसने तलब की थी 25 दिनार को उसे देते हैं और एक वर्क़ा लिखा जाता, लिखते हैं उस पर लिखते हैं कि बुढ़िया ने उमर की गलती जो उसका ख्याल नहीं किया, जो इसकी जरूरतों को पूरा नहीं किया, उसके तौर पर। हालांकि देखा जाए तो ऐसा नहीं है, बल्कि हज़रत उमर फारूक तक उनका मामला ही नहीं पहुंचा था, मगर फिर भी उस मातून के दिल को तसल्ली हो जाए, उसके दिल में रहमत वाला जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल को अल्लाह ताला ने मोमिनों पर रहम दिल करने वाला, रहम करने वाला जो रहम दिल उनको बनाया था, वो सिफत का इजहार, रहम दिली का इजहार आप फरमा रहे हैं। फिर भी उस बुढ़िया की तसल्ली के लिए, हालांकि उसको मुआखजा ही उनको पता ही नहीं तो मुआखजा कैसे पहुंचा था। मामला यही है कि वे उनका वो नाराज होना ही अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं है और शिकायत करने का इरादा करना ही अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं है, मगर तकलीफ में है, परेशान है, मजबूर है, कोई उसका पुरसाने हां नहीं है, तो मजबूर के किसी दिल के दर्द की आवाज को जुर्म ठहरा करके उन्हें सजा देना या उन्हें भगा देना, धुतकार देना, ये शान हजरत उमर फारूक की नहीं है, बल्कि उसके दिल को खुश कर देना ये शान हजरत उमर फारूक की है। उसके दिल में रहमत और मोहब्बत के जज्बे को भर देना
ये शान हजरत उमर फारूक की है। आपने लिखा कि उमर की गलती को 25 दीनार के बदले में इस खातून ने माफ कर दिया और ये कि कल क़यामत में इसकी शिकायत अल्लाह के सामने नहीं की जाएगी। और उस पर गवाह हजरत अली इब्न अबी तालिब ने गवाही की दस्तखत की और फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने गवाही की दस्तखत की और आपने अपने शहजादे से फरमाया था वर्क़ा दे करके कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये मेरे साथ दफना दिया जाए। और ये रिवायत हयातुल हैवान में जिक्र किया गया है। तारीख में ऐसे बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रहम दिली के अनोखे किस्से नजर आते हैं और अनोखी शान नजर आती है। और आपके जलाल तो जलाल फारूकी तो मशहूर ही है, बड़ा जलाल वाला अल्लाह ने आपको बनाया था और ऐसा जलाल वाला बनाया था कि इंसान का इंसान है कि जिसे इंसान आमतौर पर अक्ल होश वाला नहीं समझते हैं, उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रोब और दहशत तारी फरमाया था। मिस्र को जब फतह कर लिया गया था तो हजरत अम्र इब्न आस ने एक मर्तबा हजरत उमर फारूक के पास लिख कर के भेजा। मिस्र की आदत है दरियाए नील जब भी बहता है साल में एक मर्तबा खुश्क हो जाया करता है, फिर उसमें पानी बहाने के लिए एक खूबसूरत कुमारी औरत की बलि चढ़ानी पड़ती है। जब उसकी बलि दी जाती है तभी नील बनने लगता है। अब क्या किया जाए, बताया जाए। अब तो अगर न बलि दिया जाए तो पानी बह नहीं सकता। हजरत अम्र इब्न आस ने कहा था कि एक बेगुनाह और बच्ची की जान को ऐसे जाया नहीं किया जा सकता है, ये जुल्म है, नाजायज है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। हाँ, इस मामले में क्या करना है, हम अपने अमीर से मशवरा करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो जवाब देंगे, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा। फिर आपने खत लिखा कि हुजूर मामला मिस्र का ऐसा है, यहाँ ये सब कुछ होता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में लिख करके भेजा, हरगिज हरगिज किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया जाएगा, हरगिज हरगिज किसी भी के तरीके से ये बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। हाँ, मैं ये खत लिख करके दे रहा हूँ, इस खत को ले जाकर के दरिया में डाल देना, अल्लाह को मंजूर होगा, पानी बह जाएगा, और अगर मंजूर नहीं तो खुदा खुद ही हमारा दूसरा इंतजाम फरमा देगा। ये कह करके भेज दिया गया। खत को जब देखा गया, लिखा क्या था उसमें, आपने लिखा था, अल्लाह के आजिज बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील को, ऐ नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो हम अल्लाह ही से तेरे बहने को तलब कर लेंगे, और अगर तू अपने आप बहता है तो हमें न तेरी हाजत है न तेरे पानी की हाजत है। ये कह करके हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिख दिया, भेज दिया। जब वहां पर पहुंचाया गया, एक रिवायत में आता है कि आपने फरमाया, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बह जा, वरना हमें तेरे बहने की कोई हाजत नहीं है, न तेरे पानी की हमें कोई हाजत है। जब देखा गया मिस्र के तमाम भी आया है, अभी अभी इस्लाम का फतह का झंडा वहां नस्ब हुआ है, लोग देखना चाहते हैं ये अहले हक है, ये सच्चे इंसान है, तो इनके साथ सच्चाई का क्या हाल होगा, कैसा मामला होगा, वो देखना समझना चाहते हैं। सैकड़ों की तादाद में दरिया के दोनों किनारों पर इंसानों का जम लपेट ठहरा हुआ है। वो जो बलि दे करके पानी आज तक उस दरिया में बहता, देखते सुनते, आबाओ अजदाद से जमाना दर जमाना यही देखते, यही रस्म को देखते सुनते सुनाते करते चले आ रहे हैं। आज रस्म को बदलते हुए देखने का इंतजार में ठहरे हुए हैं, देखने का इरादा लेकर के आए हैं। आज उनकी तारीखी हैसियत भी के बदल जाने का दावा है, उसको बदलते हुए अपनी आंखों से देखने का इरादा लिए हुए आए हैं। मगर यहाँ पर मामला क्या है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, राजी हो जाता है, तो उसकी ज़बान में अपनी ताकत अता फरमा देता है, ज़बान में अपनी ताकत अता फरमा देता है। ज़बान उस बंदे की होती है, हुक्म खुदा जारी कर दिया जाता है, उनकी कुंजी बना दी जाती है। मामला भी यही यहाँ पर भी वही था। जब हजरत उमर फारूक का खत दरियाए नील में डाला गया तो दरिया के बीच में जब रख करके किनारे पर पहुंचना था, किनारे पर पहुंचने से पहले दरिया बहना शुरू हो गया। ने देखा, अपनी माथे की आंखों से देखा, अल्लाह के बंदे आजिज़ देखने में जरूर होते हैं, मगर रूहानी ताकत और कुव्वत अल्लाह ताला ने उनके ज़बान और नजर में ऐसी अता फरमाई है कि हुक्म जारी कहते हैं तो खुश्क दरिया बहता हुआ नजर आ जाता है। उनकी जलालत और खौफ का ये हाल है, वो तारीख है और आज की तारीख है। नील दरिया मिस्र का बह रहा है और बह रहा है, मुसलसल बह रहा है, आज भी बह रहा है, क़यामत तक बहता रहेगा। बताया जा रहा है, लोगों देख लो, दुनिया पर अल्लाह ताला ने ताकत और रोब और दबदबा रखा है, तो अल्लाह ने अपने महबूब बंदों का दबदबा रखा है, उनकी शान और ताकत को रखा है। आज भी अगर बंदा खुदा की इताअत गुजारी में उनके
نقش قدم پر چلنے والا ہو جائے تو انسانوں کے لیے فتح و ظفر اور کامیابی کے دروازے اتنے کشادہ ہوں کہ ہر جگہ پر ہر علاقے میں فتح اور کامیابی ہی کا معاملہ نظر آئے۔ عزیزان محترم، آج ہمیں اپنے بزرگوں کے اسلاف پر چلنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی، اہل بیت اطہار کی زندگی پر اپنی زندگی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنا ضروری ہے، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے چال و چلن کی طرف نظر کرنا ہے، ہمارے فکر و خیال کی طرف نظر کرنا ہے کہ ہم میں کون سی غلط باتیں آ گئی ہیں، ہمارے فکر اور خیال میں کون سی غلطیاں آ رہی ہیں۔ جب ہم اس کی اصلاح کرنے لگ جائیں گے، ایک وقت وہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہمارے دل میں سماعت کرنے چلی جائے گی، اور اللہ کی رحمت جب ہمارے دل میں اترتی چلی جائے گی تو اس رحمت کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے عمل اور ہماری سوچ اور ہماری فکر نکھرتی چلی جائے گی، کامیابی کے راستے پر ہم چلتے چلے جائیں گے، اللہ کے محبوب بندوں کا ساتھ ہمیں مل جائے گا۔ جب صراط مستقیم پر گامزن ہونا خدا ہمارے لیے مقرر فرما دے گا، عطا فرما دے گا، تو پھر تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہے، آخرت بھی ہماری کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، اس میں کہنے میں، سننے میں، جو بولنے میں، سمجھانے میں جو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو بات کو صحیح کہا گیا اسے قبول فرمائے اور ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار گنہگار مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاکار مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار مظلوم مولا ہم پر ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرضدار ہمارے قرض کو عطا فرما۔ پروردگار ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں دنیا میں خیر کی زندگی عطا فرما، آخرت کی خیر کی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔